Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Kamranzi, and in this video session, we are going to give you a brief overview of the Sindh Shops and Commercial Establishment Act 2015. Okay, before we proceed, here arises a question in our mind that why we are going to discuss this act instead of the Shop and Establishment Ordinance 1969, which was available in the course outline. Here you can see the course outline of this course, the forensic pharmacy, which is going to be taught in the second semester or say the 10th semester. Here it is written that we have to study the Shops and Establishment Ordinance 1969. So why we are instead of this act, why we are studying this act? So the answer is that after 18th amendment in the Constitution of Pakistan, which was implemented in I guess in 2010, some subjects from the federal list has been transferred to the provincial list, and provinces has been authorized to run the business of these subjects on their own. The subjects were among various subjects there was education, labor, etc. So this act, like the shop and establishment ordinance, was related to the labor. So Sindh government in 2015 has proposed that bill in the Sindh Assembly, which was get approved in the 2016, and as of today it is being implemented in the province of Sindh in place of or after repealing the shop and establishment ordinance. So uh, I have said that, but what is the evidence? मतलब जो भी हम कह रहे हैं इसके पीछे एविडेंस क्या है? क्योंकि अब जब आप लोग अब फॉरेंसिक फार्मेसी पढ़ रहे हो तो आपको किसी भी वर्बल क्लेम पर नहीं जाना अनलेस जो सी दैट सी इट बाय योरसेल्फ इन राइटिंग, और जो राइटिंग डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, वो वेरीफाएबल हो। तो जो टेक्स्ट आपके सामने, ये टेक्स्ट है सिंध शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2015 का, जिसे सिंध असेंबली की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखें रिपील एंड सेविंग, आपको पता है ना हर एक्ट में जिस तरह शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट होता है, प्रेम्बल होता है, इसी तरह रिपील एंड सेविंग होता है। वो ये बताता है कि ये एक्ट किससे रिप्लेस कर रहा है, किसी एक्ट को रिप्लेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये बात उस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब एक ही टॉपिक पर मुख्तलिफ एक्ट्स हों। सो वी हैव टू फाइंड आउट द रिपील एंड सेविंग in this act. I will type repeal. Okay, so here we are, section 34. Yes, section 34, heading is repeal and saving. अगर हम ये टेक्स्ट पढ़ें, the provisions of the shop and establishment ordinance 1969, this is the same act which I was referring. It was mentioned in the course outline of this course. The provisions of the Shop and Establishment Ordinance 1969, hereinafter referred to as the Repeal Ordinance, in its application to the province of Sindh, are hereby repealed. मतलब क्या हुआ आसान अल्फाज में, जब ये एक्ट नाफिज हुआ तो इस एक्ट के इम्प्लीमेंट होने के बाद से ये जो है आपके पास शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1969, इट हैज़ बीन रिपील्ड। तो जो कोर्स आउटलाइन में लिखा हुआ है ना, ये देखिएगा आप लोग कोर्स आउटलाइन में, अब कोर्स आउटलाइन में लिखा हुआ है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1969, ये आज की तारीख में एटलीस्ट सिंध में एप्लीकेबल नहीं है। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टडिंग दिस एक्ट, इंस्टेड वी हैव रिप्लेस्ड इट विद द न्यूअर एक्ट। अच्छा, अब कोर्स आउटलाइन में पुराना एक्ट क्यों लिखा हुआ है? क्यों लिखा हुआ है इसका सादा सा जवाब ये है कि जो कोर्स आउटलाइन आपके पास है, इट वाज प्रपोज इन द ईयर 2013, and that act, this shop and the Sindh Shops and Commercial Establishment Act was promulgated in the year 2016. तो डेफिनेटली कोर्स आउटलाइन में ये मेंशन नहीं हो सकता था। कोर्स आउटलाइन अब जब अपडेट होगी, फार्मेसी काउंसिल इसे अपडेट करेंगी, तो शायद इसे इम्प्रूव कर दिया जाए। जिस तरह ड्रग लॉज होते हैं, सेल ऑफ ड्रग के हवाले से चीज़ें होती हैं, उसी तरीके से ये भी कह दिया जाए कि रिस्पेक्टिव प्रोविंस में जो लॉ एप्लीकेबल है आप उसी को पढ़ लें। ओके, सो ये चीज़ क्लियर हुई कि वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। सो अब हम इसका एक क्विक, एक ब्रीफ सा ओवरव्यू लेते हैं, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कर लें। ओके, सो क्यों है ये एक्ट? पहला सवाल, क्या इस एक्ट में है क्या?
इस एक्ट में क्या है, इस एक्ट में ये है टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू द आवर्स एंड other conditions of work and employment of person employed in shop and commercial industry and other establishment in the province of Sindh। तो मतलब क्या, बिल्कुल सादा सादा सी बात है कि इस लॉ को पढ़ने के बाद यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंसिव, यू शुड हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्किंग आवर्स एंड अदर कंडीशंस ऑफ वर्क। मतलब आप कहीं जॉब कर रहे हो तो जॉब के हवाले से वर्किंग आवर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, डे में, वीक में, मतलब कितने दिन काम करना है, कितने घंटे काम करना है, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, पेमेंट किस किस्म की होगी, ओवर टाइम क्या चीज़ होती है, चाइल्ड लेबर होती है नहीं होती, वुमेन एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कोई रिस्ट्रिक्शन, ये तमाम चीज़ें आपको इस एक्ट में पता चल जाएंगी, या लॉ ऑफ लैंड क्या है ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद फिर हम आते हैं सेक्शन नंबर 1 पे। सेक्शन नंबर 1 में आपको पता है तकरीबन हर एक्ट के सेक्शन नंबर 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन लिखी होती है। तो ये चीज़ें भी आप लोग क्विकली इसको पढ़ लेंगे। इसका नाम क्या है, नाम इसका ये है, मे बी कॉल्ड दस्तन शॉप एंड कमर्शियल सेटलमेंट एक्ट। एप्लीकेबिलिटी, प्रोविंस ऑफ सिंध, कब अप्लाई होगा, शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। ठीक है, जैसे ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश होगा, और ऑफिशियल गजट में जो पब्लिकेशन की डेट इधर मेंशन की गई है, या नोटिफिकेशन की जो डेट है वो लिखी हुई है 29 अप्रैल 2016। तो 29 अप्रैल 2016 के बाद प्रोविंस ऑफ सिंध में द सिंध शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस एक्ट 2015 इज एप्लीकेबल। अब उधर 15 लिखा हुआ है, एप्लीकेबल 16 से हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सीधी सी बात है कि असेंबली में ये प्रेजेंट हुआ था 2015 में, और फिर मुख्तलिफ इसकी हेयरिंग्स होती हैं, उसके बाद इट वॉज गेट अप्रूव ऑन 25 अप्रैल 2016। तो कभी कोई एमसीक्यू कहीं किसी भी किस्म की चीज़ों में सवाल पूछा जाए तो डोंट कंफ्यूज। ठीक है, बाकी चीज़ें आप इसमें से देख लेंगे, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। देन कम्स सेक्शन 2। सेक्शन 2 इज़ ऑल अबाउट द डेफिनेशंस। डेफिनेशंस को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये देख लें कि इसमें डेफिनेशंस हैं, और डेफिनेशंस का जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि पूरे टेक्स्ट में कहीं पर भी आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, किसी वर्ड को समझना हो, तो ऑलवेज रेफर टू दिस सेक्शन कि इसमें क्या लिखा हुआ। जब इसमें अगर आपको कोई वर्ड ना मिले तो उसके बाद फिर आप जनरल अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाइए कि इस वर्ड का क्या मतलब हो सकता है। ओके, सेक्शन 3, रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे। मतलब घड़ी में जो टाइम होगा वो कौन किस टाइम का एतबार होगा, जीएमटी का एतबार होगा, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम का एतबार होगा, डे लाइट सेविंग होगी, यूरोपियन स्टैंडर्ड टाइम का एतबार होगा। तो यहाँ बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हवाले से भी टाइम है, आप उसे फॉलो करेंगे। मतलब ये इंपॉर्टेंट होता है ना कि फॉर एग्जांपल क्लोजिंग आवर्स आ गए इस्टेब्लिशमेंट के कोई शॉप प्रोविंस ऑफ सिंध में 9 बजे, 10 बजे, 6 बजे, 5 बजे के बाद खुली नहीं रहेगी। तो ये जो 5 बजे की हम बात कर रहे हैं, ये 5 बजे विच टाइम, इट्स नॉट सफिशिएंट टू राइट 5 PM, नो, 5 PM आगे आपको मेंशन करना पड़ेगा, 5 PM GMT और द 5 PM PST। तो लॉ में मेंशन कर दिया कि जितने भी टाइमिंग्स हैं आगे कहीं लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, जहाँ मतलब PST लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, तो आप मान लें टाइमिंग्स हैं रिगार्डिंग टू द पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम। ठीक। अच्छा, इसी तरीके से नंबर 4 में गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है। गवर्नमेंट का पावर है कि इस पूरे एक्ट में जितनी भी एग्जाम्पशंस दी गई हैं, मतलब कुछ जगहों को शॉप्स का नाम दिया गया है, कुछ जगहों को शॉप से एग्जाम्पशन दी गई है। मतलब कोई प्लेस बाय डेफिनेशन शॉप की डेफिनेशन पे पूरी उतर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो उसे शॉप डिक्लेयर ना करे। ये अथॉरिटी, ये बस पावर दी गई है कि गवर्नमेंट किसी भी इस्टेब्लिशमेंट को इस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी से निकाल सकती है, शॉप को शॉप की कैटेगरी से निकाल सकती है। अच्छा, फिर उसके बाद नंबर 5, सेक्शन नंबर 5 में आते हैं। सेक्शन नंबर 5 में ये बात है कि कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स और पर्सन कुछ ऐसे होंगे जिन पर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। ये आप इसको देख लीजिएगा। जनरली इसमें बात हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ऑफिस हैं, पाकिस्तान रेलवे हो गया, रेलवे स्टेशन हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे रेलवे की बात समझ में आ रही है ना कि अब इसको तो 9 to 5 आप नहीं चला सकते ना, ये तो 24 घंटे चलने वाली चीज़ें। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफिस हैं, गवर्नमेंट ऑफिस की अपनी वर्किंग है। समटाइम जैसे आप बात करें, एक कॉमन एग्जांपल मैं देता हूँ एफबीआर की। जब टैक्स कलेक्शन हो रही होती है तो एफबीआर के ऑफिस 10 बजे, 12 बजे तक फील्ड ऑफिस खुले हुए होते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, मतलब जनरली आप इसको इस तरीके से करें कि यहाँ पर इन्हें एग्जाम कर दिया गया, ये चीज़ें अप्लाई नहीं होगी। इसी तरीके से आप एक लिस्ट है, कुछ एग्जीबिशंस होती हैं, सर्कस लगते हैं, उसमें जो स्टॉल्स वगैरह लग रहे हैं उन्हें भी एग्जाम किया। इसी तरीके से लिस्ट कंटिन्यू होती है, यहाँ पर 10 9 to 10 तक यहाँ लिखी हुई है। इसके बाद फिर मजीद एग्जाम्पशंस हैं,
क्लब्स और होटल्स की बात आ रही है। अब मेनली यहाँ पर सब सेक्शन 2 की जो हम बात कर रहे हैं, सब सेक्शन 2 की जो बात कर रहे हैं, इसमें मज़ीद एग्जाम्पशंस हैं। इसमें जो मज़ीद एग्जाम्पशंस हैं वो मेनली वो शॉप्स हैं कि कुछ शॉप्स को आप एग्जाम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये वेजिटेबल शॉप या मीट शॉप है, ये क्लियर बाय डेफिनेशन ये शॉप की कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन इन्हें आपने यहाँ से निकाल दिया। ये गवर्नमेंट ने इस एक्ट में बना दिया। ठीक है, तो इन्हें हम देखते हैं डिटेल डिस्कशन इसका फिर किसी और वीडियो में करेंगे। अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं। अच्छा, शॉप वगैरह के हवाले से गवर्नमेंट अपने टाइमिंग्स भी फिक्स कर सकती हैं कि कितने बजे शॉप खुलेगी, कितने बजे बंद होगी। इस एक्ट में अभी ओपनिंग का तो नहीं लिखा हुआ, क्लोजिंग का लिखा हुआ, अभी आगे आएगा तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, सेक्शन 6 में वीकली हॉलीडेज इन एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। इसका इसमें बस ये बताया गया है कि पूरे हफ्ते में कम से कम एक दिन एस्टेब्लिशमेंट ज़रूर बंद होगी। एक से ज़्यादा दिन ही बंद हो सकती है, वो फिर बाद में देखें, लेकिन कम से कम एक दिन छुट्टी ज़रूर देनी है। और सब सेक्शन 5 में इसे मज़ीद एक्सप्लेन किया है कि वो दिन या तो फ्राइडे होगा या संडे होगा। और ये चॉइस इस्टेब्लिशमेंट को दी गई है कि आप अपना तय कर लें कि आप फ्राइडे छुट्टी करेंगे या संडे छुट्टी करेंगे, और जिस दिन भी आपको छुट्टी करनी है वो इन्फॉर्म कर दें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि छुट्टी तो दे रहे हैं, इस छुट्टी की वजह से पैसे नहीं कटेंगे। मतलब वही ना कि अगर आप 5 डेज काम करो तो 5 दिनों के पैसे मिलने चाहिए, नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट ने छुट्टी दी है, वीक में एक दिन आपको ऑफ देना है, आराम करना ज़रूरी है, तो इस दिन जो छुट्टी होगी उसके पैसे डिडक्ट नहीं होंगे आपकी सैलरी से। ठीक है, तो पॉइंट सेक्शन नंबर 6 में ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हफ्ते में एक दिन छुट्टी देनी है, उसके पैसे नहीं कटेंगे, और वो छुट्टी का दिन फ्राइडे होगा या संडे होगा। इसके बाद फिर जब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इट कम्स सेक्शन 7 होना चाहिए। सेक्शन 7 में ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स की बात है। ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स में इन्होंने बस ये बता दिया कि 8 बजे के बाद नो एस्टेब्लिशमेंट शेल ऑन एनी डे रिमेन ओपन आफ्टर 8। 8 बजे के बाद कोई भी एस्टेब्लिशमेंट ओपन नहीं रहेगी। अब आप जहन में लेकर आ जाए, बैंक्स वगैरह, कोई बैंक इतनी देर तक नहीं खुला होता, या मुख्तलिफ ऑफिस होते हैं, इसमें इस तरह नहीं होता। अच्छा, फिर इसके अलावा अगेन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो गजट में इन टाइमिंग्स को रिलैक्स कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से सब सेक्शन 2 में ये मेंशन है कि ये जो ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स होंगे, जैसे देखें ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर्स जितने भी हों, आप मेंशन कैलकुलेट कर लें, वो टाइमिंग्स प्रॉपरली डिस्प्ले करनी होगी। हर एम्प्लॉयर को प्रॉपर टाइमिंग डिस्प्ले करनी होगी। बैंक की एग्जाम्पल आप जहन में लेकर आ जाए, बैंक से टाइमिंग लिखी हुई है ना कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर्स क्या है, तो उस एग्जाम्पल को जहन में रखें, वो बड़ा कॉमनली, मतलब वो उधर फॉलो हो रही होती हैं चीज़ें बाय लॉ, तो उसे आप ध्यान में रखिएगा कि कितने बजे खुलेगा, कितने बजे बंद होगा। अच्छा, इसके बाद फिर इसी सेक्शन 7 का सब सेक्शन 3 अगर हम देखें, तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि कोई भी एम्प्लॉय 6 आवर्स से ज़्यादा कंटिन्यूसली काम नहीं करेगा। अगर 6 आवर्स से ज़्यादा का काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 घंटे का ब्रेक देना पड़ेगा। इसी तरीके से ये मेंशन किया है कि वुमेन या एडोलेसेंट, एडोलेसेंट की डेफिनेशन देख लीजिएगा, हर वो शख्स जिसकी उम्र 14 से 18 ईयर्स के दरमियान है उसे एडोलेसेंट बोलते हैं। तो एडोलेसेंट या वुमेन 9 बजे से लेकर 7 बजे तक ही काम कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसी की कंटिन्यू अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि 8 बजे के बाद कोई एस्टेब्लिशमेंट ओपन नहीं रहेगी। कोई भी वर्कर, मतलब जो एम्प्लॉय होगा, वो 6 घंटे से ज़्यादा मुसलसल काम नहीं करेगा, और अगर 6 घंटे से ज़्यादा आप काम करा रहे हो तो आपको 1 घंटे का ब्रेक देना पड़ेगा। वुमेन 9 बजे से लेकर 7 बजे तक ही काम कर सकती हैं। इसी की कंटिन्यूशन में सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 में डेली वीकली आवर्स की बात हो रही है और ओवर टाइम की बात हो रही है। इसी कंटिन्यूशन पर हम आ रहे हैं कि एक दिन में वर्किंग आवर्स की लिमिट क्या है। यहाँ लिखा हुआ है 9 आवर्स। 9 आवर्स ए डे, मतलब एक दिन में एक एडल्ट 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, या आप काम उसे ले नहीं सकते। 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, या आप उसे ले नहीं सकते काम इन अ वीक। एक दिन में 9 घंटे की लिमिट है, एक वीक में 48 आवर्स की लिमिट है। इससे ज़्यादा आप काम नहीं ले सकते। अगर आप इससे ज़्यादा काम लेंगे, यू हैव टू पे दी ओवर टाइम। ठीक है, ये सारी डिस्क्रिप्शन इधर ही लिखी हुई है।
अब ओवर टाइम क्या चीज़ होती है? एक्स्ट्रा टाइम जो आपने उसका लिया है ना, एम्प्लॉय का जो आपने लिया है, उससे उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अब पेमेंट कितनी होगी? पेमेंट कितनी होगी? पेमेंट का ये लिखा हुआ है कि ओवर टाइम, ये लिखा हुआ है सेक्शन 9 में। ओवर टाइम वेजेस, ओवर टाइम वेजेस के हवाले से लिखा है कि ओवर टाइम वर्क शैल बी कैलकुलेटेड एट डबल एंड ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस पेबल टू हिम। मतलब उसको नॉर्मली हर घंटे की जो तनख्वाह मिल रही होती है, फॉर एग्जांपल किसी को अगर ऑर्डिनरी 1 घंटे में 100 रुपये मिल रहे हैं, तो उसका जो ओवर टाइम रेट होगा वो 200 रुपये होगा। मतलब 9 घंटे के बाद अगर किसी दिन में काम करे, हफ्ते में 48 घंटे उसने पूरे कर लिए, 48 घंटे के बाद वो अगर काम कर रहा है तो उसको पर रेट पर आर डबल पेमेंट होगी। ठीक है, ये ओवर टाइम का प्रिंसिपल है। फिर सेक्शन 10 में एक स्प्रेड ओवर की टर्मिनोलॉजी आती है। स्प्रेड ओवर पूरा टाइम ड्यूरेशन है, मतलब जितनी देर एम्प्लॉय वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में, इस्टेब्लिशमेंट टाइम गुजार रहा है, वर्किंग आवर्स और इंटरवल ऑफ रेस्ट, इसे हम शामिल करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई एक दिन में 9 घंटे काम कर रहा है और बीच में इंटरवल ऑफ रेस्ट भी है, इन सबको शामिल करके शामिल करते हैं, तो इसे आप स्प्रेड ओवर कहते हैं। जनरली ये वो टाइम है जिस दौरान में एम्प्लॉय नॉर्मली इस्टेब्लिशमेंट में इन्वॉल्व रहता है। तो इसकी फिर लिमिट रखी है कि विंटर्स में 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ड्यूरेशन, और समर में 11 आवर्स से ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर इसी तरीके से फिर हम और आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 11 में बात आ रही है टाइम एंड कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। पेमेंट ऑफ वेजेस की बात आ रही है, तो इसने बताया है कि आप पेमेंट, लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये है कि आप इसको वीकली पेमेंट करना चाहें कर सकते हैं, 15 डेज की पेमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं, डेली पेमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। बहरहाल जो भी पीरियड होगा, वो पेमेंट का जो पीरियड है वो 1 मंथ से ज़्यादा नहीं है। ये वीकली पेमेंट कर सकते हैं, ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसको हमने कंक्लूड कहाँ से किया, यहाँ से इस टेक्स्ट हमने निकाला है कि 1 मंथ से ज़्यादा ये जो पेमेंट का जो पीरियड है वो नहीं होगा ना, हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है। सॉरी, यहाँ से हमने इस इन्फेरेंस निकाला है कि 1 मंथ से ज़्यादा का पेमेंट पीरियड नहीं होना चाहिए। आप उसे वीकली पेमेंट भी कर सकते हैं, 15 डेज की पेमेंट भी कर सकते हैं, डेली पेमेंट भी कर सकते हैं। हेक्टिक होता है, नॉर्मली 1 मंथ की पेमेंट ज़्यादा बेहतर रहती है। और पेमेंट का मोड क्या होगा? पेमेंट का मोड होगा इन लीगल टेंडर थ्रू क्रॉस चेक्स ऑफ द कमर्शियल शेड्यूल बैंक। कैश डीलिंग को थोड़ा मिनिमाइज करने की बात की गई है यहाँ पर। बैंक्स की इन्वॉल्वमेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है, डॉक्यूमेंटेशन आसान होती है, सबके लिए सेफ्टी है इसमें। मतलब वो पैसे वैसे छीनने वीनने का भी सिलसिला नहीं होता, और ना जो एक आमतौर पर प्रॉब्लम आती है जहाँ पर कैश डीलिंग होती है, जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है वो उसमें से कुछ पैसे जमा कर रहा होता है, अपने पास रख रहा होता है। पर बात आई है, इससे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप लोगों ने नाम सुना होगा कारून का। कारून के पास इतनी दौलत कैसे आई थी? हम कहा जाता है ना, एग्जाम्पल के तौर पे कारून का खजाना। तो अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ें, या अब जो भी थोड़ा बहुत मुझे पता चला है चीज़ें किताबें पढ़ के या लोगों से, तो यही था कि कारून के पास दौलत इसलिए थी कि कारून की जो काम था वो ये था कि बनी इसराइल के जो मजदूर थे, मजदूरों को सैलरी पेमेंट देने का काम उसके पास था। तो वो उसमें से कुछ पैसे रोक के देता था। तो उन पैसों को रोक के वो आना पाई, मतलब थोड़ा बहुत ही पोर्शन जो भी डिडक्ट कर रहा है वो सारी डिडक्शन उसकी जेब में जा रही थी, इस वजह से वो अमीर हुआ था। पर ये ऐसे ही जुमले में उतरता आया था, इसको बस ऐसे ही लीजिएगा, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट, नॉट रिलेटेड टू द डिस्कशन। बस बात आई थी तो बस बात आ गई थी, और ये किसी से मुमासिलत इत्तफाकी होगी, कहना ज़रूरी है। अच्छा, ये पेमेंट की टर्म्स आ गई। पेमेंट के बाद फिर ये होगा कि टर्मिनेशन ऑफ अपॉइंट टर्मिनेशन, अगर आप जॉब किसी की टर्मिनेशन कर रहे हैं, जॉब ख़त्म हो रही है, तो उसके जितने भी ड्यूज़ हैं उससे 2 दिन के अंदर अंदर, सेकेंड वर्किंग डे की एक्सपायरी से पहले पहले आप उसे पे कर दें। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन 11 है, इसे आप और गौर से पढ़िएगा, हम इस पर भी ज़रा डिटेल बात करेंगे। सेक्शन 12 में बात हो रही है कि पेमेंट के हवाले से अगर किसी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसी हो, देर से पेमेंट मिल रही है या कम पेमेंट मिल रही है, जितने डिसाइड की थी इतनी नहीं, तो फिर उसमें क्या होगा? उसमें फिर तरीक़ेकार ये वजह किया गया है कि आप इस किस्म के जो भी क्लेम्स होते हैं उन्हें आप इन्फॉर्म करें। इन्फॉर्म करेंगे तो अब सवाल होता है किसे इन्फॉर्म करें? तो गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में अपॉइंट करी गई एक अथॉरिटी, कोई ऑफिस होगा, किसी ऑफिसर को ऑथराइज कर देंगे कि भाई इस किस्म के सारे मसाइल आप इनसे डिस्कस करें। इस हवाले से कॉमन एग्जांपल जो आपके जहन में आते हैं, अगर मैं किसी से पूछूंगा डिलेड पेमेंट की कोई एग्जांपल बताएं, तो फौरन आप लोग पाकिस्तान स्टील की एग्जांपल देंगे, वहाँ पर लोगों को सैलरी देर से मिल रही होती है, और ये हमें न्यूज़ रिपोर्ट से ही पता चलता है। तो वाला सेक्शन 12 इज ऑल अबाउट द क्लेम्स
अराइजिंग आउट ऑफ डिले इन पेमेंट, मतलब देर से पेमेंट मिल रही है, कम पेमेंट मिल रही है, तो फिर आप शिकायत कहाँ दर्ज करेंगे और उसका तरीकाकार क्या होगा, वो यहाँ मेंशन है सेक्शन 12 में। ठीक है, सेक्शन 12 में मेंशन है। फिर ये डिटेल चल रही है। सेक्शन 13 भी इसी की कंटिन्यूएशन में है, रिकवरी ऑफ वेजेस के हवाले से। जो भी क्लेम है कि अब जिम्मेदारी किस पर है, ये जिम्मेदारी जो जिसने क्लेम किया है उसके ऊपर जिम्मेदारी के वो सबूत भी वही प्रोवाइड करे। 12 सबूत होते हैं कि आपने कोई क्लेम किया है ना, तो क्लेम का आप सबूत तो दें कि क्यों है। अच्छा, आफ्टर 13 कम्स सेक्शन 14 वेयर इट इज, ओके हियर इट इज। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, जहाँ पर एनुअल और मैटरनिटी लीव्स की बात हो रही है। मतलब मैं फोकस कर रहा हूँ लीव्स पे। तो एनुअल लीव्स हैं, एनुअल लीव्स में यहाँ पर बात की गई है कि साल में 14 डेज जो परमानेंट एम्प्लॉई है उसे 14 डेज की छुट्टी मिल सकती है विद पे। और अगर वो छुट्टी अवेल नहीं करेगा तो वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, और कैरी फॉरवर्ड होके भी बस एट अ टाइम 12 महीने की सर्विस के बाद उसे 14 डेज की लीव मिलेगी, पेड लीव। अगर वो अवेल नहीं करेगा तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, लेकिन एट अ टाइम 30 डेज से ज़्यादा 30 डेज से ज़्यादा उसकी छुट्टियां कम्युलेट नहीं होंगी। मतलब जो पहले साल 14 छुट्टियां उसके अकाउंट में, दूसरे साल 14 छुट्टियां उसके अकाउंट में, तीसरे साल की जो 14 छुट्टियां होंगी वो अकाउंट में नहीं आएंगी, 30 पे अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि तीसरे साल तक आप छुट्टियां अवेल करना शुरू कर दें। एनुअल लीव्स इसी तरीके से। फिर कैजुअल लीव और सिक लीव की बात आ रही है। कैजुअल लीव कितनी होती है? कैजुअल लीव इमरजेंसी में आपको छुट्टी करनी पड़े, सुबह आप उठे तबीयत सही नहीं है, या ट्रांसपोर्ट का कोई मसला है, या स्ट्राइक हो गई, या कोई भी घर में इमरजेंसी हो गई, तो आप कैजुअल लीव करते हैं। कैजुअल लीव ये होती हैं कि ये अनइन्फॉर्म लीव होती हैं। एनुअल लीव से इन्फॉर्म लीव होती है ना, आपने बताया कि आपकी एब्सेंस में कोई काम कर लेगा, मैनेज कर ले जाता है। कैजुअल लीव में ये होता है कि आप अनइन्फॉर्म लीव करते हैं, लेकिन इसके ये पैसे नहीं करते, और ये साल में कैलेंडर ईयर में 10 छुट्टियाँ हो सकती हैं। इसी तरह सिक लीव की बात है तो सिक लीव्स 8 दिन की सिक लीव्स कर सकते हैं। फिर फेस्टिवल हॉलीडेज आती हैं। फेस्टिवल हॉलीडेज मतलब ये ईद बकरीद की जो छुट्टियाँ होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, अगेन ये तमाम छुट्टियाँ जो होंगी फेस्टिवल हॉलीडेज भी, ये तमाम पेड छुट्टियां हैं, इन छुट्टियां करने के पैसे नहीं कटेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, फिर सेक्शन 18 में मजीद एग्जम्पशन है कि किन लोगों पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, वो रेफरेंस दिया है वो आप देख लीजिएगा। 19 में टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कि अगर किसी भी तरफ से फॉर, इसको पढ़ लेते हैं, फॉर टर्मिनेटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ परमानेंट एम्प्लॉय 1 मंथ नोटिस इन राइटिंग शेल बी गिवन आइदर बाय द एम्प्लॉयर और बाय द एम्प्लॉय। मतलब आप जॉब छोड़ के जा रहे हैं, आप छोड़ के जा रहे हैं, तो आप नोटिस दोगे। नोटिस इसे हम आसान अल्फाज में कहते हैं, आप रेजिग्नेशन लेटर दे रहे हो, उसके अंदर आपने लिख दिया कि मैं 1 महीने के बाद माई सर्विसेज विल नॉट बी अवेलेबल टू यू। इसी तरीके से अगर एम्प्लॉयर किसी की सर्विस ख़त्म करना चाह रहा है तो वो 1 महीना पहले बताएगा कि अगले महीने की पहली तारीख से आने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके इस दौरान में आप अपने लिए कोई नई जॉब वगैरह आप तलाश कर लें। तो परमानेंट एम्प्लॉय के लिए 1 महीने का नोटिस फ्रॉम द अदर साइड, ये ये देना ज़रूरी है। जबकि जो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है उन्हें विदाउट नोटिस उनकी सर्विसेज ख़त्म की जा सकती। सेक्शन 20, किसी बच्चे से काम नहीं कराएंगे, अगेंस्ट चाइल्ड चाइल्ड लेबर ये एक्ट है, मतलब ये सेक्शन है, बिल्कुल ठीक है, चाइल्ड से काम नहीं कराना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट में ये लिखा हुआ है, इसको अगर हम देखें कॉन्ट्रैक्टिंग आउट में, कि अगर आपने किसी को एम्प्लॉय किया है किसी कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी से, मतलब आपने डायरेक्ट अपने पास हायर नहीं किया है, बल्कि आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर से कहा है कि मुझे 5 एम्प्लॉय चाहिए किसी भी काम के लिए 6 महीने के लिए, उसने प्रोवाइड किए। अब वो भी अब सैलरी जो आ रही है, सैलरी यहाँ जिसने हायर किया है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए है, कंपनी ए ने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि मुझे 5 एम्प्लॉयज दे दो। तो कॉन्ट्रैक्टर ए, सॉरी, कंपनी ए ने एक लमसम अमाउंट तय कर ली कि हम इतने पैसे देंगे आपको, कॉन्ट्रैक्टर को। आगे एम्प्लॉय के हवाले से जितने मामला हैं वो आपका हेडेक है, लीव्स, पैसे, काम वगैरह सब आप देखोगे, हम आपको सिर्फ इतने पैसे देंगे, आप ये बंदे हमें दे देना, हम उनसे काम करा लेंगे। तो इस जगह पर इस एक्ट में ये लिखा हुआ है, इस सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि ठीक है, वो जो 5 लोग होंगे वो कंपनी ए में काम तो कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है तमाम चीज़ें। उसके जितने भी मामला आते हैं इस एक्ट की प्रोविजन के हवाले से, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इस एक्ट में दिए गए हुकूक कुछ ख़त्म नहीं कर सकता। मसलन अगर इसमें एनुअल लीव की बात लिखी हुई है तो ये नहीं कह सकता कि एनुअल लीव आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, इस पूरे टेक्स्ट में यही बताने की कोशिश की गई है। सेक्शन 22 ये मेनली फैक्ट्री से रिलेटेड है कि अगर किसी मशीनरी पे काम हो रहा है तो उसकी प्रॉपर आप प्रोटेक्शन करेंगे।
सेक्शन 23 में ये बात की गई है कि प्रॉपर रिकॉर्ड और या रजिस्टर मेंटेन करेंगे जितने भी आपके पास एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। 24 में लिखा हुआ है कि जब भी इस्टेब्लिशमेंट बनेंगे उन्हें रजिस्टर कराना पड़ेगा। उन्हें रजिस्टर कराएंगे, रजिस्टर कहाँ कराएंगे, मतलब आपने सिर्फ उन्होंने एग्जामेशन दी है कि ये वन मैन शॉप है ना, ठेले वगैरह वगैरह लगाए हुए, कोई स्टॉल लगाए हुए, उसे छोड़ दें आप, या कुछ फैक्ट्रीज हैं जहाँ जहाँ पर क्लरिकल स्टाफ है उन्हें छोड़ दें। बाकी जितने इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, स्पेशली बैंक्स वगैरह को आप ध्यान में लेकर आ जाएं। समझने के लिए बैंक्स हो गए, ये ब्रोकरेज फर्म्स हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम करने वाले लोग हो गए, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हो गई, ये तमाम लोग, इन्हें अपने आप को रजिस्टर कराना है विद द डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द एरिया। रजिस्ट्रेशन कराएंगे आप, उसकी फ़ीस वगैरह ये मेंशन है कि कितनी कितनी फ़ीस होती है, इसमें भी लिखा हुआ है, एक्ट के आखिर में भी आप देख लीजिएगा कितनी फ़ीस है। अच्छा, इन सब के बाद फिर ये होगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन के पर अप्लाई करने के बाद फिर एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जिसका फॉर्मेट आप फॉर्म सी में देख सकते हैं, इसी एक्ट में आखिर में देख लीजिएगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसे परमानेंटली डिस्प्ले करना है किसी हर इस्टेब्लिशमेंट में, और हर 2 साल के बाद आपको इस्टेब्लिशमेंट की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू कराना है, और अगेन वही फीस आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद फिर अब ये चीज़ आती है ना कि आप ये एक्ट पढ़ रहे हैं, आपने देखा कि एनुअल लीव्स और पेमेंट और टर्मिनेशन, फिर सैलरी के डिले के हवाले से जो मसाइल होते हैं, इनको रिजॉल्व करने का क्या तरीका होगा। तो यहाँ सेक्शन 25 में कुछ अथॉरिटीज़ की, कुछ ऑफिसर्स की बात की गई है। एक है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ शॉप्स, ये एक होगा पूरे सन में एक। इसके अलावा डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ शॉप्स, मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, ये डिवीजन्स भी हो सकते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट का परव्यू है कि कितने डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर्स ये बनाए जाए। ठीक है, इंस्पेक्टर्स लिखा हुआ है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ इंस्पेक्टर लिखा हुआ है, चीफ इंस्पेक्टर वो एक होगा, और डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर ज़्यादा हो सकते हैं रिस्पेक्टिव एरिया। तीसरा फिर यहाँ पे बताया है कि इंस्पेक्टर फॉर द पर्पस, तो 3 लेवल्स आ रहे हैं। चीफ इंस्पेक्टर होगा, डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर्स होंगे, और इंस्पेक्टर्स भी हो सकते हैं। ये लेबर के इंस्पेक्टर्स हैं, और इनका काम है कि कहीं पूरे सिंध में लेबर लॉ की वायलेशन तो नहीं हो रही, उन लॉज की जो कि इस एक्ट में लिखे हैं। ठीक है, ये इनके अपॉइंटमेंट्स की बात हुई। अपॉइंटमेंट्स के बाद फिर सेक्शन 26 में मेंशन है कि इनकी क्या पावर है। मतलब कुछ ना कुछ पावर तो दी गई होंगी ना, अगर ये इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस एक्ट की वायलेशन होने से बचाएं, रिपोर्ट करें, तो समझिएगा कि आप मुख्तलिफ जगहों पर विजिट कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड को एग्जामिन कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, 26 में पावर ऑफ इंस्पेक्टर के बाद 27 में पेनल्टीज आ रही हैं। ये अगर आपने इस एक्ट की प्रोविजंस के खिलाफ वर्जी की तो क्या क्या पेनल्टीज हो सकती हैं, ये सेक्शन 27 में हम देखते हैं। ये मुख्तलिफ चीज़ों पर पेनल्टीज लिखी हुई हैं। डिटेल डिस्कशन जब करेंगे तो उसे हम कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। 28 में प्रोसीजर्स की बात हो रही है। 29 में फिर लिमिटेशन ऑफ प्रोसीजर, प्रोसिक्यूशन है कि आप किस कोर्ट में ले जा सकते हैं, कहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें, मतलब कहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, कहाँ क्लेम नहीं कर सकते। इंडेमनिटी, डेलीगेशन ऑफ पावर, पावर टू मेक रूल्स, ये ठीक है, जनरल चीज़ें जो कि हर एक में होती हैं। इंडेमनिटी की बात जनरली क्या होती है कि अगर किसी इंस्पेक्टर ने गुड फेथ में कोई काम किया तो उसके खिलाफ आप कोई किसी किस्म का कोई केस नहीं कर सकेंगे, अगर क्योंकि अगर इंडेमनिटी नहीं होगी तो फिर कोई भी इंस्पेक्टर काम करने से घबराएगा कि यार ज़रा सा काम किया, मेरे खिलाफ केसेस हो गए। तो इंडेमनिटी होती है गुड फेथ में, लेकिन यहाँ पर गुड फेथ लेते हैं, अगर कोई मलेशियस इंटेंशन के साथ करते हैं तो फिर आप केस कर सकते हैं, गुड फेथ में कोई केस नहीं होगा। डेलीगेशन ऑफ पावर्स हैं, ठीक है, पावर्स किसी और को अथराइज कर दी है गवर्नमेंट ने। पावर टू मेक रूल्स, अब इस ये एक्ट है ना, ये एक्ट है तो इसके रूल्स बनेंगे। अब रूल कौन बनाएगा, गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट। डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इस पूरे एक्ट में जहां भी गवर्नमेंट लिखा होगा इसका मतलब है सिंध गवर्नमेंट, तो इसका मतलब है कि सिंध गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। अब गवर्नमेंट कौन होती है, गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट, मतलब गवर्नमेंट वही होती है ना, वो तो फिर पार्लियामेंट होता है जब आप असेंबली की बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रूल्स बनाने के लिए पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट रूल्स अप्रूव कर देगी एंड दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फिर हम आखिर आखिर में आते हैं कि कुछ सेविंग ऑफ सर्टेन राइट्स एंड प्रिविलेज, मतलब ये होगा कि इस एक्ट के नाफिज होने से पहले जो राइट्स और प्रिविलेज जो मेरे भी थे वो कंटिन्यू रहेंगे। रिपेयर एंड सेविंग हम
स्टार्ट में ही डिस्कस कर चुके हैं कि आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस द शॉप एंड कमर्शियल द सिंध शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस, the older shops and establishment ordinance 1969 has been repealed. अब ये एप्लीकेबल नहीं, कहीं कहीं पर आप पढ़ेंगे, आप सर्च करेंगे तो वेस्ट पाकिस्तान शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1969 लिखा होगा। अब वो रिपील हो गया है, अब ये पाकिस्तान में एप्लीकेबल, सॉरी सिंध में एटलीस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दैट वाज ब्रीफ ओवरव्यू। आई हैव ट्राइड टू कीप इट ब्रीफ बट यू नो थिंग्स हैपेंस। बात से बात निकलती तो बात कहीं की कहीं पहुंच जाती है। तो एक ये ओवरव्यू है, उम्मीद है कि ये पूरी वीडियो अगर आप देखें तो ठीक है, तेज तेज बोला था उसे आप इग्नोर कीजिएगा। तो इसको पढ़ने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इस एक्ट में जनरली क्या लिखा हुआ है और किस पॉइंट को आप ज़्यादा फोकस करेंगे। कुछ इंटरेक्टिव सेशंस हम इसे कर चुके हैं, कुछ करेंगे, और कुछ 2 से 3 रिकॉर्डेड वीडियो, या 12 डिपेंड करते हैं कि कितनी रिकॉर्डेड वीडियो हम इसकी बना के शेयर करें, ताकि हम जो चीज़ हमने सरसरी तौर पर डिस्कस की हैं उन्हें हम डिटेल में डिस्कशन करें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।